Hello everyone. So from today we are going to start 12th class physics. So our first chapter is electric charge, or it is also known as first chapter name is electrostatics. So what are the things related to it, and we will study in this chapter, and the origin of this electric charge, what is charge, everything we will study in this chapter. So before discussing this thing, we will start with the terminology. We will start our 12th class with this terminology that every substance in this universe is made up of atoms. कि जितने भी substance है हमारे आसपास सब काय से बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं. Every substance is made up of atom. Let's understand this terminology, what this line is trying to say us. So this line says that everything is made up of atoms. If I say this chalk is also made up of atoms, and there are millions and trillions of atoms inside this. If I say the book, pencil, chalk, this mobile, everything is made up of atoms. Plant, trees, everything. If I say I am inhaling the air which are going in my lungs, there are trillions of air molecules which are going in my lungs. So basically everything is made up of atoms. So how atom looks like, let's discuss. Firstly we discuss how small the atom is. एटम कितना छोटा है इस चीज़ को हम समझते हैं. सो 10th क्लास में वी स्टडी इन 10th क्लास द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अमीबा. सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म अमीबा. ये हमने 10th क्लास में देखा होगा. सो इट इज़ टू स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी इट फ्रॉम आवर नेकेड आइज. Even from the school laboratories microscope we cannot see this. It requires a high electromagnetic microscope and all. It is too small. It is the smallest living organism, amoeba. So science discovered that this smallest single cellular organism also consists of 12 pentillions of atom. इतने छोटे से अमीबा के अंदर भी 12 पेंटिलियंस ऑफ एटम्स हैं. 12 पेंटिलियंस बहुत बड़ा होता है, मिलियन, ट्रिलियंस, फिर उसके बाद बहुत क्वाड्रिलियन और फिर उसके बाद पेंटिलियंस. तो इतने सारे एटम्स हैं इस छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म में. तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एटम कितना छोटा है. एटम इज़ टू स्मॉल. इफ आई एम राइटिंग ओवर हियर विद सिंगल अल्फ़ाबेट, दिस अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम. देयर मिलियंस ऑफ एटम्स फ्रॉम दिस chalk is getting transferred to this board. So how atom looks like? Let's see how atom looks like. In 11th class chemistry we have seen our first chapter physical chemistry was there we have studied, but let's recollect it from that. So atom consists of a nucleus which is having neutrons and protons. So this is the nucleus of the atom which is having protons and neutrons. तो और इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. सो इन फर्स्ट ऑर्बिट देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड 18. वी हैव सीन नील बोर थ्योरी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स एंड एवरीथिंग. सो दिस इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट इन यूनिवर्स, एटम. सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. And there are 118 types of elements till discovered. So smallest element is hydrogen. It consists of single proton and single electron, and then helium, two proton and 2 electron. So धीरे धीरे जब हम उसमें periodic table में बढ़ते हैं तो number of proton increases and number of electron also increases. So overall in an atom number of proton is equals to number of electrons. So at that time when atom was discovered, it was हम वो ये मान के चलते थे कि जो न्यूट्रॉन्स है वो इसमें नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है. प्रोटॉन के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज. एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोथ आर इन इक्वल नंबर्स. So atom become electrically neutral. तो ये जो एटम है इलेक्ट्रिकली हो जाता है न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही इसमें होता है
नेगेटिव चार्ज। तो हम बोलते हैं कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली होता है न्यूट्रल। तुम्हें केमिस्ट्री, अब तुम लोग सोचोगे ये केमिस्ट्री में कहाँ घुस गया हूँ मैं एटम में। देखो हिस्ट्री में जा रहे हैं हम, इसकी जो टॉपिक है इसको डीप में समझेंगे। पहली बात तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है सब चीज़, तो वहाँ तक ले जाने के लिए मैं तुमको सबसे पहले एटम के बारे में समझाना चाह रहा था। तो हम पहुँचेंगे अपने टॉपिक पे आएंगे, चिंता मत करो। तो ये है एटम अपना, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द यूनिवर्स। So now we will talk about the history of this atom. So it was around mid of 18th century, 1850, आज से 200 साल पुरानी बात है ये। So ग्रीक फिलोसोफर्स थे, फिजिसिस्ट थे। सो एट दैट टाइम वहाँ पे उन्होंने एक नई मैजिक देखने को मिला उनको कि एक वुड स्टिक थी, एम्बर नाम का एक वुड था, ट्री था एक एम्बर नाम का, एम्बर। ग्रीक कंट्रीज की बात है, वहाँ पे डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रिक चार्ज। सो देयर वाज ए ट्री कॉल्ड एम्बर। सो इट वाज ए वुड। सो एट दैट टाइम इट वाज ए मैजिकल थिंग्स टू देम, because when we rub this wooden stick of amber with a wool, it was used to attract bit of straws or paper. हम ये देखते थे कि जो इसको अगर मैं वुलन क्लॉथ से रब करता हूँ तो मुझे देखने को क्या मिलता था कि इसको अगर मैं किसी पेपर के पास, छोटे पीस ऑफ पेपर के पास अगर मैं इसको ले जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये जो पेपर से इस वुड के साथ अट्रैक्ट होते हुए दिखे। यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा भी नहीं कि ये जो है एक रस्सी से पकड़ के जरा, ऐसा कुछ फिजिकल कांटेक्ट था नहीं, तो भी ये दोनों चीज़ें क्या हुई, अट्रैक्ट हुई। उस टाइम ये उनको एटम भी पता नहीं था क्या हो रहा है, क्या है चीज़ें हैं सब। तो उनके लिए उस टाइम एक ये मैजिक के जैसा ही था। वहीं से स्टार्ट हुई थी हमारी क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत 200 साल पहले आज से। तो ये अपना वुडन स्टिक है और ये कागज के टुकड़े हैं। तो इट वाज सीन दैट दिस वुडन स्टिक is trying to attract this pieces of paper. So what is actually happening there, that their mythology, they set up a mythology what is actually happening here. So let's see what is actually happening here. Firstly, ये जो लकड़ी है, वुडन स्टिक है, ये भी एटम से बनी हुई है, और ये पीसेस ऑफ पेपर है, ये भी क्या बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। हमने जो टर्मिनोलॉजी लिखी थी उसी टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में सब बनी हुई एटम से। तो हुआ क्या, जब मैंने इस लकड़ी को वुलन क्लॉथ से रब किया, पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। ये एटम है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, फिर उसके बाद ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट रहता है, अलग अलग ऑर्बिट रहते हैं, अलग अलग एटम्स के, एलिमेंट्स के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखा गया कि ये जो ये है न्यूक्लियस के बहुत पास, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ इसका जो न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत वीक है। तो दिस फोर्स इज लार्जर इन मैग्नीट्यूड एंड दिस फोर्स इज स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। सो आई कैन इजीली एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, यानी कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से इजीली बाहर निकाल सकता हूँ। उसको निकालूंगा कैसे, हम सिर्फ बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस आउटर मोस्ट शेल से निकालता हूँ तो होता क्या है, वो चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो एटम है ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, और प्रोटॉन्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। यानी जो पॉजिटिव चार्ज की जो क्वांटिटी है इस एटम के अंदर वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल जब होता है एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन आर पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। सो दिस एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो दो चीज़ अलग अलग हो जाएगी, दो चीज़ें हो जाएगी, एटम अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब चीज़, अब हम वापस से अपने टॉपिक पे जाते हैं कि हुआ क्या, कैसे अट्रैक्ट हुई है जो पेपर जो है इस वुड को कैसे अट्रैक्ट हुए। तो हुआ क्या है, सपोज ये एक एटम है, इस लकड़ी का ये मान लेते हैं इस वुड का एटम है ना।
तो हो क्या रहा है, जब मैंने इसको वुलन क्लॉथ से रब किया तो हुआ क्या, कि जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो उस लकड़ी से क्या हो गया, निकल गया। वो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, जो जिस क्लॉथ से अपन ने रब किया था उस क्लॉथ में वो चला गया। तो इससे हुआ क्या, जो अपनी जो लकड़ी है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है, तो ये दिस वुडन स्टिक बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द क्लॉथ, द पीस ऑफ क्लॉथ बिकम नेगेटिवली चार्ज। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? अब हुआ क्या है, देखो ये जो है इस लकड़ी के अंदर मैंने चार्ज इंड्यूस्ड कर दिया, इसमें मैंने चार्ज डाल दिया। अभी न्यूट्रल थी, जितनी भी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सब न्यूट्रल होती है। अगर वो रेस्ट में पड़ी, उनमें कुछ भी नहीं करा है मैंने, जैसे चौक, इसमें कोई चार्ज नहीं है, मेरे में कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं इसमें चार्ज लाता हूँ तो मैंने लाया कैसे, फ्रिक्शन के थ्रू इंड्यूस किया मैंने चार्ज को, इसको बोलते हैं इंडक्शन के थ्रू मैंने इसमें चार्ज दिया। अपन बाद में डिस्कस करेंगे वो चीज़ें। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि वुडन स्टिक में मैंने चार्ज इंड्यूस किया है। एक सेकेंड, तो इस वुडन स्टिक में मैंने चार्ज इंड्यूस किया है। अब इधर देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इस वुडन स्टिक के अंदर ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पीस ऑफ पेपर है, ध्यान देना, दिस पीस ऑफ पेपर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इसमें पीस ऑफ पेपर में देयर इज हैविंग नो चार्ज बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। सो हाउ दे आर अट्रैक्टिंग, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आ गया, लेकिन इनमें कोई चार्ज नहीं, तो भी ये इन दोनों को अट्रैक्ट कैसे किया, वो चीज़ समझते होता क्या है। सपोज दिस इज आवर पीस ऑफ पेपर, वो क्या रहा है, जब मैं वुडन स्टिक इसके पास में आई, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना, होगा क्या, अलग अलग एटम्स है इसमें, ये भी वुडन पीस भी है, वो वुड के जो पीसेस है स्मॉलेस्ट लाइट वेट है, इसमें भी ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है। सपोज मैं एटम का डायग्राम बना, भले ऐसा होता नहीं एक्चुअल में, इतने साइज बड़े एटम, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एटम बना दिया। हो क्या रहा है, अब ध्यान से देखना, होगा क्या, जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास में ला रहा हूँ तो होगा क्या, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से समझना, ये वाली जो साइड है इसकी, ये बन जाएगी नेगेटिव चार्ज और ये वाली बन जाएगी पॉजिटिव। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है, समझना, इसके जो ये जो एटम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो होगा क्या, इस पेपर की इस साइड में पॉजिटिवली चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, वो इस साइड में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इकट्ठा, सॉरी गलत बोल दिया मैं, इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा। एटम से एटम्स में आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकले, एक्साइट हुए, दे ट्रांसफर टू द दिस साइड ऑफ द पेपर पीस। सो हुआ क्या है यहाँ पे, आप देखो, ये है अपना वुडन स्टिक और ये है अपना पीस ऑफ पेपर। तो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो है ये पीस ऑफ जो पेपर है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज बराबर है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इस पेपर में से कहीं नहीं गए हैं। अब देखो, अब होगा क्या, जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज लकड़ी को इस न्यूट्रल पीस के पास लाता हूँ तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये दोनों क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही देखने को मिलता है, एक फिर मैथोलॉजी सेटअप करी ग्रीक फिलोसोफर्स ने, कि जो पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज है वो रिपल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो अनलाइक चार्जेस थे, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, और लाइक चार्ज क्या होते हैं, रिपल। ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों ने रिपल किया तो पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया और नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ। होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को अपन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, इधर बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो आई थिंक यू ऑल गॉट माई पॉइंट, हाउ दिस वुडन पीस इज अट्रैक्टेड बाय द पीस ऑफ पेपर। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों ने इसको अट्रैक्ट किया। तो ये एक मैथोलॉजी उस टाइम पे सेट करी थी और अभी भी ये चली जा रही है, और इस प्रूव भी हो चुकी है आज कि हाँ, जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स भी देखने को मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। सॉरी बच्चों, कॉल आ गया था, मुझे अटेंड करना पड़ा उसके लिए। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये जो वुडन पीस है, वुडन स्टिक, ये चीज़ हमें समझ में आ गई किस प्रकार से, किस तरीके से, हाउ दिस वुडन स्टिक अट्रैक्ट टू द पीस ऑफ पेपर। सो वो क्या रहा है यहाँ पे, कि जो वर्ड एम्बर है, लकड़ी का नाम है, यहीं से स्टार्ट हुआ है सबका। जो भी फिनोमिना यहाँ पे मैजिक हैपन हुआ है, तो ले देखिए हुआ क्या है, सारा जो गेम है वो है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का ही गेम हुआ है। जो भी चीज़ें यहाँ पे फिनोमिना, जो भी चीज़ें अपन को देखने को मिलती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है वुडन स्टिक, यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है चार्ज का। तो ले देखिए हो क्या रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है एक तरह से अपनी जगह पे ही है,
तो मोशन ऑफ द हो क्या रहा है, ले देखिए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट ऑर्बिट से वो इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है। एटम अपनी जगह पे ही रहता है, तो ले देखिए होता है क्या, इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर घूमता है और उसकी वजह से एटम जो होता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता रहता है। तो ये जो वर्ड एम्बर है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक कंट्रीज में वहीं पे एम्बर यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये यही है मतलब इसका इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो हमने इलेक्ट्रॉन को भी समझ लिया, इलेक्ट्रॉन होता क्या, क्योंकि बात वहीं से होती है, क्योंकि चीज़ हो क्या रही, जो भी फिनोमिना एक्ट हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द हाउ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एंड इट क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सो आई थिंक यू ऑल गॉट माई पॉइंट, how the discovery of this charge is there and the force of attraction was there between them. So the mythology was said that like charges were used to be repel and unlike charges are used to attract each other. And we can see from the balloon and our hair, when we rub the balloon to our hair, the balloon and hair start attracting each other because the electrons are from our hair are getting transferred to the balloons, and balloon become negative charge and hair becomes positive charge. So they are attract. When we rub two balloons to each other, so both balloons are negative charge, my hair is positive charge. When we bring balloons to each other, they will repel each other. But when we brings balloon to here, they will attract each other. So repulsion and attraction, the phenomena is start from this electricity. This phenomena is electricity. We will discuss in further chapter. So first phenomena was attraction and repulsion, attracting force and repulsing force. So this is start of our electricity. And secondly at that time एक और चीज़ वहाँ पे उस टाइम हुई थी कि एक नेचुरली ऑकरिंग स्टोन्स थे, नेचुरल अर्थ के अंदर पाए जाते थे स्टोन्स जो थे, तो वो स्टोन्स की क्वालिटी प्रॉपर्टी होती थी कि दे वर यूज टू अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन। जब उन स्टोन्स को आयरन के पास ले जाते थे तो जो है आयरन को अट्रैक्ट करते थे। तो वहाँ पे भी फोर्स हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन हुआ, वहाँ पे भी अट्रैक्शन हुआ, लेकिन दोनों अट्रैक्शन में अंतर है। वहाँ पे जो अट्रैक्शन हो रहा था आयरन को, स्टोन्स का, नेचुरल ऑकरिंग स्टोन्स थे, उनको मैजिकल स्टोन्स भी बोलते थे उस टाइम ग्रीक में। तो वहाँ पे जब यहाँ पे दो ब्रांच साइंस की स्टार्ट हुई, ये थी यहाँ पे जो फिनोमिना हुआ ये अट्रैक्शन था, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से था, और वहाँ पे जो था फिनोमिना वो था मैग्नेटिज्म की वजह से। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो चीज़ ब्रांच साइंस की स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिक फिनोमिना मैंने तुम लोगों को समझा दिया है। अब हम समझते हैं मैग्नेटिज्म होता क्या। मैग्नेटिज्म हम आगे वाले चैप्टर में समझेंगे। तो दो ब्रांच साइंस की स्टार्ट होती है यहीं से, ग्रीक मैथोलॉजी 200 साल पहले। इलेक्ट्रिसिटी की एक अलग हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक फिनोमिना मैंने समझा दिया किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं इधर से उधर, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, अट्रैक्ट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंड्यूस्ड होता है। और यहाँ पे भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, स्टोन जो था आयरन का पीस है ये, और ये स्टोन है, ये नेचुरल स्टोन था, इसको मैग्नेट बोलते थे। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेट। तो हुआ क्या, ये आयरन और मैग्नेट दोनों कांटेक्ट में था, कोई रस्सी से पकड़े हुए नहीं था, फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं था, पर हमें देखने को ये मिला कि ये जो दोनों चीज़ें हैं आपस में क्या हुई है, अट्रैक्ट हुई है। ये भी फोर्स है, ये भी देख नहीं पा रहे हैं इस फोर्स को, यहाँ पे भी जो फोर्स था वो भी हम देख नहीं पा रहे हैं, पर दोनों फोर्स तो हम सेम हम नहीं बोल सकते। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है, और ये फोर्स जो है यहाँ पे इन दोनों का अट्रैक्शन मैग्नेटिज्म की वजह से हुआ। तो यहीं से साइंस ने स्टार्ट हुई थी अपनी साइंस। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की अलग अलग साइंस स्टार्ट होती है, और इन दोनों को बोलते हैं, इसको जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन दोनों की जब साइंस साथ में पढ़ते हैं हम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमें इस चैप्टर में बहुत सारी इस 12th क्लास में इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये चीज़ समझते हैं होता क्या है। हमें देखने को ये मिलता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते थे, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सब हम आगे चैप्टर में, फर्दर चैप्टर में सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से हम क्विक रिव्यू मैंने बता दिया है 12th क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन 12th क्लास। आई शो यू द रिव्यू ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। So I think you all got my point what I am trying to say। तो यही था मैग्नेटिज्म, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो अलग है, ये अलग है।
और दोनों को साथ में जब मिला देते हैं तो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 12th क्लास में हम सीखेंगे। तो यहीं से स्टार्ट होती है हमारी 12th क्लास की फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। इलेक्ट्रिक चार्ज भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नई नई चीज़ें सीखेंगे। सो थैंक यू।